Welcome students to Business Mathematics and Statistics class. Today we will learn how can we find arithmetic mean for different kind of series. First of all, if we see what is arithmetic mean, then arithmetic mean is a number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items. So here we can see we denote arithmetic mean as x bar, and x1 x2 x3 up to xn, these are the number of observations which can be up to any number in a series, and n is the number of observation in a particular series. So we can denote it as summation x over n, where summation x is the sum of observations and n is number of observations. We have three methods to find arithmetic means, that are direct method, shortcut method and step deviation method. And we have different kind of series for which we will learn how can we find arithmetic mean with these three kind of methods. So ਇਹ series ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ individual series, discrete series and continuous series. Continuous series further two types ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ divide ਕਰਦੇ ਹਾਂ. First is exclusive and inclusive series. So individual series ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Individual series ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ number of observations given ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ each frequency ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. That means ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ observation ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ happening ਜਿਹੜੀ ਆ one time ਹੋ ਰਹੀ ਆ. So for example ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ series ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 5 3 2 8 10. So इस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ऑब्जरवेशन ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ this is x1, this is x2, x3, x4 and x5. So n is 5 here because number of observations is 5. So these are observations. So ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ. ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 30 ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਉਹਦਾ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਆ ਕਿ 0 5 10 15 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ. ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ 30 ਬੱਚੇ ਹੈ, 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 0 ਮਾਰਕਸ ਆਏ. ਤਾਂ 0 ਮਾਰਕਸ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਹੈ. 3 ਟਾਈਮਸ 0 ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ. ਦੈਨ 5 ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਟਾਈਮਸ 5 5 5 ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 7. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ 10 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਟਾਈਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 10 ਟਾਈਮਸ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 15 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ 20 ਮਾਰਕਸ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 30 ਬੱਚੇ ਸੀ. 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਹੈ, 6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 15. ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਮ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੂਰੀ BA ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਤਾਂ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਸੋ ਹੁਣ 200 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ
कंडीशनस हैगियां वो साडे कोल की है कि मिनीमम 0 मार्क्स हो सकते हैं स्टूडेंट दे और मैक्सीमम 100 हो सकते हैं। तो 0 एंड 100 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे बच्चे होणगे जिन्हां ਦੇ अलग-अलग मार्क्स हैगे आ। तो इदां दे केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मीन फाइंड करन दे लई एवरेज मार्क्स फाइंड करन दे लई ताकि ईजीली ਅਸੀਂ फाइंड कर ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रुपिंग कर देंगे डाटा की जिन्हों कि असी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कहते हैं। हुण फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं इत्थे एग्जाम्पल लईए 100 की असी सीरीज़ बना ली कि बच्चों के मार्क्स जिहड़े 2 तो 20 दे विच किन्ने बच्चे आ 0 तो 20 दे विच जिन्हां दे मार्क्स आ 20 तो 40 दे विच 40 तो 60 दे विच 60 तो 80 दे विच किन्ने स्टूडेंट्स आ और 80 तो 100 दे विच उन्हां दे सामने असी उहदे अगेंस्ट लिख लांगे फ्रीकुएंसीज कि सपोज जिहड़े साडे कोल 200 स्टूडेंट आ इत्थे उन्हां दे विचों जिहड़े 40 बच्चे आ इदां दे आ जिन्हां दे कि 0 तो 20 दे विच मार्क्स हैगे आ 25 स्टूडेंट्स आ जिन्हां दे 20 तो 40 दे विच मार्क्स हैगे। इस तरह अलग अलग नंबर जिहड़ा इत्थे कोई भी साडे कोल हो सकता है। तो इस तरह असीं कन्वीनियंटली ये जिहड़ा सीरीज़ बना के अगे एवरेज फाइंड कर सकते हैं। हुण कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दे विच भी साडे कोल अगे दो टाइप दीयां सीरीज़ है एक्सक्लूसिव एंड इनक्लूसिव सीरीज़। हुण इन्हां सीरीज़ दे विच की डिफरेंस हुंदा तो दोनों दे विच डाटा नूं असीं ग्रुप्स दे विच ही डिवाइड कीता बट एक इहदे विच डिफरेंस की रहिंदा है कि जिस तरह असीं ते एग्जाम्पल दे नाल समझ सकते हैं कि मैं एक्सक्लूसिव दी सीरीज़ की अगर एग्जाम्पल लवां जिस तरह हुणे मैं टैसट की एग्जाम्पल लई सी कि बच्चों के मार्क्स जिहड़े आ पेपर दे विचों 0 to 20 20 to 40 और 40 to 60 इस तरह आए आ और वो फ्रीकुएंसीज हैगी कोई भी फ्रीकुएंसीज अगे उन्होंने कि किन्ने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। सो इत्थे एक्सक्लूसिव सीरीज़ मैं इनू क्यों कह रही हाँ इहदा ये फीचर हुंदा है कि ये जो क्लासिस है इन्हों असी अलग अलग क्लासिस बोलते हैं। ये फस्ट क्लास है 0 to 20 अगली क्लास 20 to 40 40 to 60 ये जो वैल्यू है इसकी लोअर लिमिट बोलते हैं असी और ये वैल्यू अपर लिमिट। इस तरह अगली क्लास की लोअर लिमिट 20 है अपर लिमिट 40 है। इस क्लास की लोअर लिमिट 40 है अपर लिमिट 60 है। जदों एक क्लास की अपर लिमिट सक्सीडिंग क्लास दैट मीनस कि जी उस तो अगली क्लास है उस क्लास की लोअर लिमिट बन जाए तो उन्होंने असी बोलते हैं कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। जिदा हम इत्थे देख सकते हैं कि फस्ट क्लास की अपर लिमिट 20 है वो नैक्सट क्लास की लोअर लिमिट बन गई। इस क्लास की जी अपर लिमिट 40 है वो नैक्सट क्लास की लोअर लिमिट बन गई। सो इनू असी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। हुण इनक्लूसिव सीरीज़ की एग्जाम्पल अगर लीए वो किस तरह की सीरीज़ साडे कोल हुंदी है 0 to 1 2 to 5 6 to 8 9 to 11 12 to 15 तो ये अगेंस्ट फ्रीकुएंसीज दित्तियां होणगियां कोई भी। हुण इहदे विच की फ़र्क है एक्सक्लूसिव दे नालों कि जो अपर लिमिट है एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। इत्थे अपर लिमिट 1 है लेकिन जिहड़ी इहदी लोअर लिमिट हैगी आ उस तो अगे शुरू हो रही है 2। इत्थे अपर लिमिट 5 है लेकिन अगली क्लास की लोअर लिमिट जी 6 है। हुण बहुत सारिया एवरेजिस नूं फाइंड करते वक्त सानू मीन फाइंड करन तो पहले इस सीरीज़ नूं एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे विच कन्वर्ट करना पेगा। हुण अगे असी देखांगे कि असी एक इनक्लूसिव सीरीज़ नूं एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे विच किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टैप है। इस दे लई की करना हुंदा है कि असी ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। जिस तरह इहदी अपर लिमिट ते लोअर लिमिट सेम नहीं है इन्हां दे विच डिफरेंस कितना है। जिद्दां इत्थे अपर लिमिट 1 है अगे लोअर लिमिट कितनी है 2 दोहां दे विच डिफरेंस कितना है 2 - 1 1। हुण इनू असी 2 दे नाल डिवाइड करना जो डिफरेंस आया डिफरेंस कितना है 2 - 1 1 1 नू असी 2 नाल डिवाइड करांगे दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस जिहड़ा आया उन्होंने असी 2 नाल डिवाइड करना। इत्थे इस केस दे विच साडे कोल डिफरेंस 1 आ डिवाइडेड बाय 2 कीता 0.5 आ गया। हुण पूरी सीरीज़ दे विच असी देखिए हर जगह ते डिफरेंस कितना है अपर लिमिट ते लोअर लिमिट दे विच 1 1 का डिफरेंस है 5 6 8 9 11 12 तो हर एक जगह ते डिफरेंस कितना रहेगा साडे कोल 1 ते 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। हुण असी की करांगे ये 0.5 नू लोअर लिमिट से विचों माइनस करदे जावांगे 0.5 ते अपर लिमिट दे विच ऐड करदे जावांगे 0.5। एक ही बन जाएगा -0.5 इधर बन जाएगा 1.5 इत्थे माइनस हो के 0.5 2 दे विचों 1.5
एंड इत्थे प्लस हो के 5 दे विच 0.5 कितना बन जाएगा 5.5। सो हुण देखो इत्थे बन गया 1 दे विच प्लस हो के 0.5 1.5, इत्थे 2 दे विचों 0.5 माइनस हो के बन गया 1.5। तो सेम हो गया 1.5 1.5, इदां ही इत्थे 5.5, इत्थे 6 दे विचों 0.5 माइनस होके रह गया 5.5। तो सीरीज़ साडे कोल एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे विच कन्वर्ट हो गई। दैन हुण असीं अगे प्रोसीड करांगे उहदे लई अरिथमैटिक मीन फाइंड करन दे लई। तो अगे होर भी एवरेजिज असीं पढ़ांगे जिन्हां दे विच असीं जिहड़ियां पोजीशनल एवरेजिज हैगियां जिवें कि मीडियन मॉड आ, उहनां दे विच भी अगर साडे कोल कदे एक्सक्लूसिव दी जगह इनक्लूसिव सीरीज़ दित्ती होवे तो फर्स्टली सानूं कन्वर्ट करना पैंदा उहनूं एक्सक्लूसिव दे विच, बिकॉज अगर असीं एज इट इज़ ही सीरीज़ नूं यूज़ कर लांगे तो उहदे विच साडे कोल जो आंसर आएगा वो आंसर दे विच थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। सो पहले जरूरी है कन्वर्ट करने लई, जद कि अरिथमैटिक मीन दे विच चाहे तुसी एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे विच इनू कन्वर्ट करो या ना करो, आंसर विल बी द सेम। सो चाहो तो अरिथमैटिक मीन दे केस दे विच तुसी इनक्लूसिव सीरीज़ तो पहले एक्सक्लूसिव बना सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ भी तुसी ये मैथड जिहड़े अप्लाई कर सकते हो, आंसर दे विच कोई भी डिफरेंस तुहाडा नहीं रहेगा।